Hello students, welcome back. This is the video of class 10 biology and we are studying chapter 2 which is control and coordination. So in this chapter you have to study about the control and coordination in plants and as well as in humans. So first of all we are talking about the control and coordination in plants. So in the previous video we studied that the control and coordination system in plant is done by the plant hormone. They affect the growth of the plant in one or the other aspect, and the growth of a plant is divided in three stages, which is cell division, cell enlargement and cell differentiation. In control and coordination of plants we studied about the plant movement, and we studied that plants are fixed at one place and cannot physically move from one place to another, but plants still show movement by using hormones under the influence of stimuli, and this movement is noticed in the unequal growth of the two regions of a plant. For example, we studied about the auxin hormone, which speed up the growth of a stem by being concentrated on the opposite side of the direction of light. So we studied that the plant movement due to external stimuli are of two types, which is tropism and nasties. Tropic movement and nastic movement. So in the previous video we studied about the tropism, and which is the directional movement in response to the stimulus, and this is the growth dependent movement. That's why this is called directional growth movement, and it can be in the direction of the stimulus or away from the stimulus. Therefore it can be positive or negative. So in the previous video we studied about the plant movement, that it is of two type, tropic movement and nastic movement. In this video we are going to study about nasties or nastic movement. So in this video we'll study about the nastic movement, and so let's begin. We know that plants are fixed at one place, and with their roots they are fixed and they cannot move from one place to another. So because plants cannot move from one place to another and they are fixed with their roots in the soil, so they do not show locomotion in general, but the movement of the individual part or organ of a plant like shoot, root, leaves, etc. is possible when they are subjected to some stimuli like light of force, light, force of gravity, chemical substances, water and touch. हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो अपनी रूट से सॉइल के अंदर फिक्स होते हैं, लेकिन उनके बॉडी पार्ट्स में आप मूवमेंट देख सकते हैं बाय इन द रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस. जब कोई स्टिमुलस मिलता है तो उसके रिस्पॉन्स में प्लांट्स जो होते हैं उनके पार्ट्स लाइक शूट, रूट एंड लीव्स, उनके शूट, रूट एंड लीव्स जो होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं. सो यही मूवमेंट हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि दीज मूवमेंट्स आर पॉसिबल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टिमुलस बिकॉज ऑफ प्लांट हार्मोन, and the movement in plant due to the external stimuli are of two types, tropic movement and nastic movement. So the tropic movement, we studied that it is a directional movement of a part of a plant in response to stimuli due to growth. Like we studied there are many type of tropism. उसमें हम लोगों ने phototropism, geotropism, thigmotropism, ये बहुत सारे टाइप के ट्रॉपिज्म पढ़े थे. उसमें से आपने जियोट्रॉपिज्म पढ़ा था कि कैसे जो प्लांट्स की जो रूट होती है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है और जो स्टेम होती है वो निगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है. नास्टिक मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो नास्टिक मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस in which the direction of response is not determined by the direction of stimulus. नास्टिक मूवमेंट में क्या होता है, जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट होती है वो स्टिमुलस के डायरेक्शन से डिटरमिन नहीं की जाती है. तो ऐसे मूवमेंट जिसमें स्टिमुलाई के डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, और जो मूवमेंट ऑफ प्लांट होती है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के डायरेक्शन में या डायरेक्शन में मूव नहीं करती है. उसमें एक
इवन मूवमेंट होता है तो उसको बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नास्टीज, इसको हम नास्टीज भी बोलते हैं। इसमें भी स्टिमुलाई जो है वो लाइट हो सकता है, हीट हो सकता है, टच या फिर कॉन्टैक्ट हो सकता है। नास्टिक मूवमेंट इज़ नॉट अ डायरेक्शनल मूवमेंट, ये डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होता है। एंड इसमें स्टिमुलाई किस डायरेक्शन से आ रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। Nastic movement, when the direction of response in a plant is not determined by the direction of stimulus, this is called nastic movement. Nastic movement is not the directional movement of the plant part. In nastic movement, whatever be the direction of stimulus, all the part of the plant equally move in the same direction. नास्टिक मूवमेंट में चाहे स्टिमुलस का कोई भी डायरेक्शन हो, जो प्लांट के पार्ट्स हैं वो इक्वली मूव करेंगे सेम डायरेक्शन में सबके सब। This type of movement is generally seen in leaves, flower, petal, etc. इस तरीके के मूवमेंट हम जनरली लीव्स में, फ्लावर्स में, पेटल्स में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द मिमोसा पुटिका प्लांट, व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ द प्लांट दे फोल्ड अप, हियर द स्टिमुलस इज टच। जैसे कि हम मिमोसा पुटिका में टच मी नॉट प्लांट में देखते हैं कि जब हम इसको टच करते हैं तो इट फोल्ड्स अप, ये फोल्ड हो जाता है इररिस्पेक्टिव टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। इसमें ये मैटर नहीं करता है कि कौन से डायरेक्शन से टच किया गया है। जब ये टच किया जाएगा, स्टिमुलस इसको मिलेगा तो ये अपना एक इवन फोल्डिंग अप आपको रिस्पॉन्स दिखाई देगा। यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? टच। इन अ डैंडिलियन फ्लावर, द ओपनिंग ऑफ द पेटल्स ऑफ दिस फ्लावर इन द मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट एंड क्लोजिंग इन द इवनिंग व्हेन द लाइट फेड्स, हियर द स्टिमुलस इज लाइट। डैंडिलियन जो है वो भी एक नास्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है। इसमें जो पेटल्स होते हैं फ्लावर के, वो ब्राइट लाइट में मॉर्निंग में क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं, और शाम में क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? लाइट। लाइट की इंटेंसिटी जब ज़्यादा होती है तो फ्लावर्स ब्लूम कर जाते हैं, ओपन अप हो जाते हैं, और जब इंटेंसिटी कम हो जाती है तो फ्लावर्स ड्रूप कर जाते हैं, मीन्स दे क्लोज। We can say that the nastic movement may or may not be growth movement. आप ये कह सकते हैं नास्टिक मूवमेंट में ग्रोथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे हमने देखा कि जो टच मी नॉट प्लांट की जो लीव्स फोल्ड हुई हैं टच करने पे, वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है, देयर इज़ नो ग्रोथ। लेकिन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पेटल जो है डैंडिलियन में, वहाँ पे ग्रोथ होगी, ठीक है। जब ग्रोथ होगी तभी प्लांट्स के पेटल्स ओपन अप होंगे, ओपन होंगे। Now we'll talk about the types of nastic movement in plants. Nastic movements are of following two types: seismonastic movement and nyctinastic movement. Seismonastic movement, इसमें क्या होता है? This type of movement is caused by the mechanical stimuli like shock, touch or contact, fast moving wind, raindrops. इसमें जो स्टिमुलाई होता है वो शॉक या फिर टच या फिर कांटेक्ट होता है। इन सम पार्ट ऑफ द प्लांट सिस्मोनास्टिक मूवमेंट इज सीन इन द स्टिग्मा, स्टेमन एंड लीव्स। स्टिग्मा, स्टेमन एंड लीव्स में आपको सिस्मोनास्टिक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जांपल मिमोसा पुडिका प्लांट, बायोफाइटम सेंसिटिवम एंड नेप्टूनिया। यहाँ पे हम सिस्मोनास्टिक मूवमेंट देखेंगे मिमोसा में। मिमोसा जिसको हम टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं। The sensitive plant Mimosa pudica, which is also known as touch me not, is an example of seismonastic movement. If we touch the leaves of this plant, they fold up immediately and droop. इसको हम टच करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? फोल्ड अप हो जाते हैं immediately और बंद हो जाते हैं। When we touch the sensitive plant, electric impulses travel through the cells of the plant and act on plant hormone. The sensitive plant has pulvini at the base of each leaf. हर लीफ के नीचे एक स्वॉलन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं पल्विनी। This pulvini contains a lot of water in their cells and due to the internal pressure of water they are firm and keep the leaf upright. इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है और उस वाटर के प्रेजेंट होने से जो सेल्स होती हैं वो टर्जिड होती हैं, और उस टर्जिडिटी और प्रेशर की वजह से जो लीफ होती है वो फॉर्म होती है और स्ट्रेट एंड अपराइट होती है, ओपन अप होती है। जब हम उसको टच करते हैं तो टच करने से जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है वो उस प्लांट के हार्मोन को ट्रिगर करता है, और हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? उस जो पल्विनी के अंदर जो सेल्स होती हैं उसमें से वाटर को रिलीज़ कर देता है। तो जब पल्विनी से वाटर रिलीज़ हो जाता है बाहर की तरफ, तो क्या होता है कि जो
वाटर लॉस की वजह से पल्विनी की फर्मनेस क्या हो जाती है, लूज़ हो जाती है, और इससे लीव्स क्या हो जाती हैं, ड्रूप हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पल्विनी है, इसके अंदर वाटर फिलअप है, तो ये जो है वो फर्म है, टर्जिड है, तो इससे लीफ क्या है, अपराइट है, ठीक है। लेकिन जब इसमें से लूज़ हो जाएगा वाटर, व्हेन द वाटर विल बी लूज, दीज सेल्स मेक पल्विनस लिम्प। ये पल्विनस क्या हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे। फ्लैट होने से क्या होगा, लीफ जो होगी वो क्या हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी, स्ट्रेट नहीं रह पाएगी और वो ड्रूप हो जाएगी। After 15 to 30 minutes, water comes back to the cell and leaf gets back to its original shape. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टर्गर प्रेशर का रोल है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द पल्विनस एट द बेस ऑफ द लीफलेट ऑफ द मिमोसा प्लांट। जब आप इसको टच करते हैं तो इसमें से वाटर क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है। वाटर रिलीज़ होने से क्या होता है, टर्गर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, और जो सेल्स होती हैं फ्लैट हो जाती हैं, इससे लीफ क्या हो जाती है, ड्रूप हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। और आप 15 से 20 मिनट के बाद फिर वापस इसमें सेल के अंदर वापस वाटर फिलअप हो जाता है। वाटर फिलअप करने से फिर टर्गर प्रेशर मेंटेन हो जाता है और फिर ये जो है वो लीफ जो होती है वो स्ट्रेट हो जाती है। सिस्मोनास्टिक का एक और एग्जाम्पल है ये वीनस फ्लाई ट्रैप। इसमें जो है देखिए वीनस फ्लाई ट्रैप जो एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इसमें जैसे ही कोई इंसेक्ट इसको टच करता है वैसे ही इसके सेंसिटिव हेयर्स जो होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं और ये फोल्ड अप हो जाती है। ये दोनों लीव्स जो होती हैं क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। सो दिस इज द ऑल्सो द अ काइंड ऑफ सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट we will talk about the nictinastic movement. Nictinastic movement occur in response to day and night. ये जो होते हैं दिन और रात के चेंज होने की वजह से ये मूवमेंट होती है प्लांट्स में। दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज़ कॉज ड्यू टू द वेरिएशन इन लाइट एंड टेम्परेचर। आप जानते हैं दिन में लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, और रात में शाम में लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग मूवमेंट, क्योंकि ये दिन रात के पैटर्न के वाइज चलता है, इसलिए हम इसको स्लीपिंग मूवमेंट भी कहते हैं। Further, it can be classified into two, photonastic and thermonastic movement. It is seen in leguminous plant, the leaflet of fold in the evening and open up in the morning. You can see in the leguminous plants शाम होती है, वैसे ही इन द लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट वो क्या हो जाते हैं, फोल्ड, लीफलेट्स उसकी फोल्ड हो जाती हैं, और मॉर्निंग में जब इंटेंसिटी लाइट की बढ़ जाती है तो फिर से ये ओपन अप हो जाते हैं। Now we will talk about the first nictinastic movement, which is photonastic movement. Photonastic movement is the non-directional movement of a plant part, usually in the petals of flower, in response to the intensity of light. ठीक है, यहाँ पे जो स्टिमुलाई है वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये जनरली आपको पेटल्स ऑफ फ्लावर में दिखाई देगा। जो आप देखते हैं फ्लावर्स जो होते हैं वो कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो दिन में खिलते हैं, और कुछ प्लांट्स होते हैं जो रात में ओपन होते हैं। द स्टिमुलस इन फोटोनास्टी इज लाइट। मेनी पेटल्स ऑफ फ्लावर्स ओपन इन द डे लाइट एंड क्लोज्ड इन द इवनिंग रिस्पॉन्स टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जो डे लाइट में ओपन होते हैं और रात में क्या हो जाते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग। जब ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है तो वो ओपन हो जाते हैं, और जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो जाती है तो वो क्लोज हो जाते हैं। ये जो मूवमेंट है जो है वो ग्रोथ की वजह से, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इन द पेटल्स and in response to the intensity of light. So this is a growth moment in plant. Example आप डेंड्रिलियन फ्लावर में, मून फ्लावर में, या फ्लावर ऑफ सिस्टम नॉक्टर्नम में देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द डेंड्रिलियन फ्लावर। ये ओपन दिन में क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, और रात में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, मून लाइट प्लांट आप देखेंगे कि ये इस तरीके से जो है वो दिन में और रात में ओपन हो, दिन में बंद हो जाता है और रात में क्या होता है, ये ओपन हो जाता है। ठीक है, मून लाइट प्लांट जो होता है वो रात में ओपन हो जाता है, दिन में बंद हो जाता है। तो उजाले में इंटेंसिटी ऑफ लाइट में ये क्लोज हो जाता है, और कम इंटेंसिटी ऑफ लाइट में ये क्या हो जाता है, ओपन अप हो जाता है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फोटोनास्टिक मूवमेंट, एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ ग्रोथ मूवमेंट, क्योंकि जब ये ओपन कब होगा, जब इसमें ग्रोथ होगी तभी। Next type of nictinastic movement is thermonastic movement. Thermonastic movement, here the stimuli is temperature.
Such movement in plant occur due to the change in temperature. Flower of a plant open with the rise in temperature and close with the drop in temperature. कुछ प्लांट में आप देखेंगे कि जो फ्लावर्स हैं वो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहे हैं, ओपन हो जा रहे हैं, ब्लूम कर रहे हैं, और जब टेम्परेचर कम होता है तो वो क्या हो जाते हैं, ड्रॉप, क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, ये फ्लावर जो है फॉर एग्जांपल इसमें आप देख सकते हैं ये जो है वो ये ओपन अप है। जैसे ही टेम्परेचर लो होता है, लोअरिंग होती है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस, तो ये इसके पेटल्स क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं और ये बंद हो जाता है। तो ये जो मूवमेंट आपको देखने को मिला, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द टेम्परेचर। सो यू कैन से दिस इज़ द थर्मोनास्टिक मूवमेंट इन द फ्लावर। थर्मोनास्टी मूवमेंट that is caused by the temperature stimulus. Like यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ट्यूलिप फ्लावर। ट्यूलिप फ्लावर विल ब्लूम इफ़ द टेम्परेचर राइजेस। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ट्यूलिप के फ्लावर खिल जाते हैं, तो उनमें ग्रोथ होने लगती है और उनके पेटल्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। और टेम्परेचर डाउन होता है तो ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ थर्मोनास्टिक मूवमेंट. Sometimes thermonastic movement is associated with photonastic movement also. In these both, the response mechanism is related to the growth changes in the turgor on upper and lower side of the petiole, leaflet, etc. So you can conclude that plants do not show locomotion. They do not move from one place to another, but there are certain movements shown by some part of the plant which may or may not be categorized as growth plants, and they are controlled and coordinated by the hormones, that is called phytohormones. Now we will study about the differences between the tropic and nastic movement in the plants. So in case of tropic movements, we saw that this is the unidirectional response to the stimulus. So it is the movement which is dependent and determined by the direction of a stimulus. It can be positive or negative. ट्रॉपिक मूवमेंट में हम लोगों ने देखा कि जो मूवमेंट होती है प्लांट के पार्ट्स की, वो या तो स्टिमुलस के अपोजिट डायरेक्शन में होती है या फिर स्टिमुलस की तरफ होती है, ये पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है। तो ये स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, आइदर इट इज़ टूवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे द स्टिमुलस। लेकिन नास्टिक मूवमेंट क्या होता है, इट इज़ नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। स्टिमुलस के डायरेक्शन से ये डिटर्मिन नहीं होती है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, इसमें आप देखेंगे कि जितने भी टाइप के मूवमेंट होते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रोथ, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जिसमें भी आप देखेंगे प्लांट्स के पार्ट्स में क्या होती है, ग्रोथ होती है और उस ग्रोथ की वजह से आपको मूवमेंट दिखाई देती है। लेकिन नास्टिक मूवमेंट जो होती है वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होती है। इसमें ग्रोथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे आप सिस्मोनास्टिक प्लांट में आपने देखा कि उसमें ग्रोथ ज़रूरी नहीं है, लेकिन फोटोनास्टिक मूवमेंट में आपने देखा कि वहाँ पे ग्रोथ हो सकती है। ग्रोथ की वजह से पेटल्स जो होते हैं वो ओपन एंड क्लोज होते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस। मोर और लेस परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, ये क्या होती है, ज़्यादातर परमानेंट होती हैं, ग्रोथ हो गई तो हो गई, परमानेंट है, और इरिवर्सिबल होती है, वापस अपने प्रीवियस पोजीशन में नहीं आ सकती है। अगर स्टेम ग्रो कर गए तो वो ग्रो कर गए, वापस से छोटे तो नहीं होंगे। टेम्पररी नास्टिक मूवमेंट क्या होता है, टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। ये टेम्पररी होता है एंड रिवर्सिबल होता है, बार बार ये रिपीट करता है। जैसे आप देखते हैं कि मिमोसा पुडिका का जो प्लांट है, आप उसको टच करेंगे तो वो ड्रूप हो जाएगा, फिर आफ्टर 30 मिनट्स वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा, फिर उसको आप टच करोगे तो फिर वो ड्रूप हो जाएगा। तो ये रिपीटेबल है एंड रिवर्सिबल है। फाउंड इन ऑल प्लांट्स, ट्रॉपिक मूवमेंट्स आपको हर तरीके के प्लांट्स में जनरली देखने को मिलेगा, और लेकिन नास्टिक मूवमेंट जो होता है फाउंड ओनली इन अ फ्यू स्पेशलाइज्ड प्लांट्स। ये कम ही प्लांट्स में आपको स्पेशल प्लांट्स में देखने को मिलेंगे जो ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं, जैसे मिमोसा पुडिका या जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। ओके,
एंड ये मूवमेंट जो होता है वो स्लो होता है, बहुत ही स्लो होता है, ग्रोथ डिपेंडेंट होता है, तो धीरे धीरे ग्रोथ होती है, तो फिर आपको ग्रोथ जब क्योंकि स्लो होती है तो आपको मूवमेंट भी स्लो दिखाई देता है। लेकिन ये क्या होता है, इमीडिएट होता है, ठीक है। आप जैसे ही मिमोसा को टच करते हो, टच मी नॉट प्लांट को टच करते हो, आपको तुरंत रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, वो तुरंत ही ड्रूप हो जाती है। अगर किसी विनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्टिवोरस प्लांट में जैसे ही कोई इंसेक्ट उसके अंदर बैठेगा तो वैसे ही तुरंत बंद हो जाएगा, तो आपको तुरंत इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलता है इन केस ऑफ नास्टिक मूवमेंट। और ये क्या होता है, ग्रोथ डिपेंडेंट होता है, तो ये स्लो एक्शन होता है, स्लोली आपको ये मूवमेंट दिखाई देता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।